by our renowned athlete, member of the elite national wushu team, Mr. Anjul Namdeo, who is in an inmate of Sai NCOE Imphal also. Sai NCOE Bhopal, and a very hardworking and very energetic Indian elite national wushu team member, Mr. Anjul Namdeo, who is a silver medalist in the World Cup Wushu Championship and BRICS Games gold medalist, and several times he represented India in international events and performed very well. And last Asian Games 2018 at Jakarta, he stood fifth and very close to the medal. And this is a very proud moment that an Indian player is ranked fifth in the Asian Games. This is very big achievement for the Indian Taolu team. And so here we have Mr. Anjul Namdeo, good evening, a member of the Indian Air Force, and also a very elite member of the national वुशु टीम. और मैं सभी को स्वागत करना चाहता हूं, स्पेशली डायरेक्टर SAI-NERC Imphal, namely Shri Francis Marwin ji, or all the dignitaries from Wushu Association of India, all the state secretaries, and all the respected coaches from every state, and our beloved players across the country. I welcome you once again in today's special section. We have 1 minute. Within 1 minute, we are starting the session with Mr. Anjul Namdeo, international player, BRICS Game gold medalist, and Asian Games fifth position, and he has represented India in several times in the international arena and bagged a number of medals for the country. I also welcome Mr. Kuldeep Handulji, respected chief coach of the Indian national wushu team. And I also welcome Mr. Gunadhar Mandalji, the high performance manager from the Sports Authority of India. And last not the least, all the beloved players from a very young age up to the every age groups of the Indian wushu athletes. I welcome everyone. Today is going to be a very special and very interesting session, hosting from New Delhi. Ladies and gentlemen, welcome. I welcome Mr. Anjul Namdeo, who is hosting the session from New Delhi. good evening. First of all, I want to thank Director Sir for giving me this opportunity, and all the dignitaries, all faculty members, and all players. Today's topic is butterfly jump. So today we will learn how to do butterfly jump from basic to advanced, and what are the major missing movements we can do in our competition time where we can lack from the scoring method. So today I will teach you from basic to advanced and all the minus pointed points and plus points. So we can start. जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जंपिंग सेशन है, तो जंप से पहले हमें स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप कंपलसरी है. तो हम लाइट स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. So we can begin now. First, let's start with our legs. First, we can do from our ankle stretch, inside, outside stretch, backward, leg change, outside,
backward stretch, change, front. Try to stretch your hamstring and calf muscles. Then hold your toe, slowly down, up, down, up, leg change. Stretch as much as you can. Hold your toe, down, up, down, up, change. Hold your left knee and stretch up, change, back. Stretch your thigh muscles, leg change, stretch up, back, change, apart your legs, hold your hands, hold your knee and then stretch outside your knee, change, change, hold your left leg, down, touch your head to your knee, up, side change, up, change side, stretch your thigh muscles, heel up, side change, heel up, change. Now we will stretch our hip and waist muscles. So slowly start rotating. Reverse. Then up your right hand side, up, inside, up, change, stretch your hands and up, change down. Try to hold your knee and touch from your forehead up. Now we can do some shoulder stretch. Hold your right hand like this and stretch as much as you can. Change hands. Back. Change. Change. Some rotation. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reverse. Change. Palm stretch. Up. Down. Change and up. Down. Change. Now neck stretch. Up. Down. Left side. Right. Again up. Down. Right. Left. Now neck rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Now we will do some warm up exercises. अपनी ही जगह पर नी अप करेंगे हम फास्ट. ये करेंगे just for 30 seconds. Go, start. जितना स्पीड से आप कर सकते हो उतना स्पीड से करना है. हमें अपना ब्रीथ बढ़ाना है. स्टॉप.
relax. One more. Start. Now, one swing exercises. Because butterfly is a jump, so swing is the most important thing we have to do every time. हमें अपना लेग्स को जितना ओपन कर सकते स्ट्रेच कर करके उतना कर सकते हैं. स्टार्ट. फ्रंट स्विंग. 1 2 3 4 5 सभी करिए. 6 7 8 स्टॉप. अच्छे. क्रॉस स्विंग. 1 2 3 4 5 6 7 8. हमको ध्यान रखना है हमारे हैंड स्ट्रेट रहें और बॉडी स्विंग के टाइम झुकना नहीं चाहिए. अगर आप नाउ इनटू आउट. क्लैप नहीं करेगा कोई भी हाथ. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके पापा. नेक्स्ट आउट टू इट. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो थोड़ा रेस्ट कीजिए. अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बटरफ्लाई के लिए हमारा स्विंग होता है वो होता है बैक स्विंग. बैक स्विंग करने के लिए हम ध्यान रखेंगे. आप एक बार फाइंड बॉडी को एकदम हमें एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए. इस तरीके से दोनों हाथों को ध्यान पीछे से ले जाकर ऊपर उसी के साथ पैर खोलना. रेडी. स्टार्ट करेंगे सभी. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्टॉप. आप करते रहिए. आप लोग करके दिखाइए. बैक स्विंग हम ज्यादा करेंगे आज क्योंकि हमारा सेशन बटरफ्लाई का है. बैक स्विंग करते रहिए. यस. नाइस. इसमें सभी को एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा नी फोल्ड नहीं होना चाहिए. स्विंग करते टाइम हमारा नी फोल्ड नहीं होना चाहिए. जैसे हम फोल्ड नहीं करना, हमें पूरा स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट रखकर हमें स्विंग करना है. करते रहिए. सही कर रहे हैं. आपके नी फोल्ड हो रहे हैं सभी के बैक स्विंग के टाइम. बैक स्विंग के टाइम हमें नी फोल्ड नहीं करना है. ये याद रखिए. नी हमें एकदम स्ट्रेट रखते हुए करना है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक पर जाते हैं. अब बेसिक के लिए हमें सबसे पहले एक कोई आप बेंच या चेयर लीजिए. हमारे पास ये एरिया है. इस एरिया पर हम या स्टूल या बेंच कुछ भी आप पर हम ऐसे सपोर्ट रखें. इसका सपोर्ट रखकर हमें लेग्स को
स्ट्रेच करना है, लेग को स्विंग करना है। 5 2 3 4 5 6 7 8 next 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग अपने घर पर प्रयास करते रहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बार बार कह रहा हूँ यही है कि हमें अपने नी को फोल्ड नहीं करना। अगर आप नी फोल्ड करेंगे तो उसका हमारा कंपटीशन टाइम पे माइनस मार्किंग, हमारे पॉइंट जैसे हमारे पॉइंट कम हो जाते हैं। हमें उनको स्ट्रेट करके इसमें कर दोबारा से करेंगे हम स्टार्ट करेंगे। अगेन इसको सपोर्ट लेना है हमें, लेकिन सपोर्ट इतना नहीं लेना है कि पूरा बॉडी हमें इसका सिर्फ हल्का सा सपोर्ट लेना है, हल्का सपोर्ट हम लेंगे और फिर स्विंग करेंगे। पूरा सपोर्ट लेने पर हमारा बॉडी वेट उसके ऊपर चला जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। अगेन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बॉडी एल्बो आप स्ट्रेट रखिए, सिंपल स्विंग 1 2 3 4 5 that's it 1 2 3 4 5। आप लोग करते रहिए, मैं देखूंगा आपको। करते रहिए आप लोग, रुकिए मत। बढ़िया, करते रहिए, मैं देख रहा हूँ आप लोग। चलिए हम नेक्स्ट बेसिक पर चलते हैं। नेक्स्ट हमें सेम ही करना है, इसी को करते हुए हमें अब क्या करना है। जहां भी हम सिंगल लेग स्विंग कर रहे थे, अभी हमें डबल लेग स्विंग करेंगे। मतलब एक बार में हम दोनों लेग्स उठाएंगे, यहाँ पर सपोर्ट लेना है और दोनों लेग्स को एक बार देख लीजिए, आप चेक करिएगा। 1 ऐसे हमें दोनों लेग्स को उठाना है 1 बाय 1। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग करते रहिए, मैं देख रहा हूं। सभी इसमें ये चीज ध्यान रखिए, अधिकतर लोगों का ये गलती हो रहा है कि वो अपना नी फोल्ड कर रहे हैं। आप लोग ये ध्यान रखिए कि नी फोल्ड नहीं करना है। आप जितना नी को स्ट्रेट रखकर करेंगे उतना ही आपका जंप अच्छा होगा, फ्लेक्स दिखेगा और स्कोरिंग आपकी अच्छी होगी। नी फोल्ड मत करिए, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए हम नी को स्ट्रेट रखें। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पैर साथ में उछाल रहे हैं। साथ में नहीं उछालना है, मैंने आपको कहा है 1 बाय 1 हमें लेकर जाना है। लेग्स को 1 बाय 1 लेकर जाना है। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट हम राइट लेग लेकर जाएंगे, सेकंड लेग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। एक बार देखिए, तो हम ये पैर उठाते हैं, इसमें ये पंजा स्ट्रेच होना चाहिए पूरा, और ये स्ट्रेट। अगर ये फुल रहे तो इसमें आपका माइनस मार्क जंप। इसको हमें स्ट्रेट रखना है, पंजा पूरा फ्लेक्स होना चाहिए, पंजा ऐसे नहीं रहे, पूरा फ्लेक्स करिए। स्टार्ट करिए आप।
मैं चेक करूंगा। हाँ सही कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट बेसिक पर चलेंगे। नेक्स्ट बेसिक हम क्या देखेंगे, फुटवर्क। फुटवर्क पर चेक करेंगे, फुटवर्क कैसे करना है आपको बता दें। सबसे पहला हमारा रूल होता है सी जंप। 4 स्टेप से ऊपर अगर आप लेते हैं जंप को करने में, तो आपका माइनस मान के होता है, प्लस वो जंप सारी होता है। तो हमें कोई भी जंप करना है तो 4 स्टेप से, या तो 4 स्टेप या उससे कम में कोई भी जंप हमें परफॉर्म करना है। तो अब मैं आपको फुटवर्क के साथ बताता हूँ। फुटवर्क में मैक्सिमम 4 स्टेप थे। 1 2 3, इधर तक 3 स्टेप। फिर से देखिए, तो 1 2 और 3। इस का फोल्ड होना, इस हाथ का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नी को फोल्ड करेंगे, नी को फोल्ड करने के बाद ही आप प्रेस कर सकते हो ऊपर की तरफ, और आपका बॉडी हवा में आराम से जाएगा। प्लस ये हाथ से हम अपनी बॉडी को फ्लो देते हैं, ये हाथ से फ्लो जाएगा। अगर हम हाथ को छोड़ देंगे तो सिर्फ हाई के पावर से हमें उठना पड़ेगा, जैसे हमारा हाइट अभी सिर्फ हम स्टेपिंग करेंगे। 1 2 3, बस इतना ही। फिर से रेडी, 1 2 3। समझ में आया? आप लोग करके दिखाइए। सिर्फ हमें अभी सिर्फ 3 स्टेप लेने, 1 2 3। कोई भी हाथ को नहीं खुलेगा, हाथ हमेशा चलते रहने चाहिए। अगर हमारे हाथ स्टॉप हो जाएंगे तो हमारी बॉडी को फ्लो नहीं मिल पाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। 1 2 3, 3 स्टेप लेने, 3 स्टेप करना। करते रहिए। करते रहिए 3 स्टेप में, सही जा रहा है। स्टेपिंग हमेशा काउंट करिए, अपने मन में काउंट करिए स्टेपिंग, और उसमें हाथ को कंबाइन करिए। स्टेपिंग आप अपने मन में काउंट करिए, 3 स्टेप लेना है, 3 स्टेप। सही जा रहा है। नेक्स्ट बेसिक हम अब इसके साथ स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे बॉडी को उठाना हवा में, सेम हम 3 स्टेप के साथ करेंगे। 1 2 3। अब इसके साथ हमें हाथ को फ्लो देना है और राइट लेग को उछालना है। फिर से देखिए, 1 2 3 एंड 4। हैंड्स का मूवमेंट फ्लो देते हुए
लेग को हमें इसके साथ कनेक्ट कर, ओके। 1 2 3 यहाँ तक आ गया आपका। यहाँ के बाद पूरा नीचे जाकर देखो 1 2 3, अब उसके बाद जाओ नीचे तक, लेग उठाओ पूरा ऊपर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब हम हाथ को फ्लो देते हैं, आप हाथ को फ्लो दे रहे हैं, इसको आगे की तरफ नहीं ले जाना। अगर आप इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो बॉडी हमारी आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, उसको हाइट नहीं मिलेगी। अगर हमें हाइट देना है, हैंड्स की फ्लो को पीछे की तरफ, ये 45 एंगल में हमें उसको फेंकना है, तो हमारी बॉडी ऊपर आराम से ट्रेवल करते हुए जाएगी। फिर से देखिए 1 2 3 डाउन एंड अप। ये लेग हमेशा सीधे रहने चाहिए, हैंड्स फोल्ड नहीं रहेंगे, एकदम हवा में सीधे, जिससे हमारा बॉडी हवा में, हमारी बॉडी का पोस्चर अच्छे तरीके से देखें। फिर से देखिए थर्ड पोजीशन आपकी है, यहाँ से नीचे जाना है एंड अप, ओके। करके दिखाइए आप लोग। बहुत बढ़िया। ये जिसका भी स्क्रीन पर दिख रहा है आप सही कर रहे हैं, बस अपने हाथों को सीधा रखिए, हाथों को सीधा रखिए और बॉडी को ऊपर उठाना है। अपर बॉडी को ढीला नहीं छोड़ना है हमें, अपर बॉडी को टाइट ऊपर की तरफ रखना है। हम अभी मैंने देखा अधिकतर लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो हाथ अपने और अपर बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। तो हाथ और अपर बॉडी को ढीला नहीं छोड़ना है, हाथ और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाकर रखना है। बढ़िया है, अच्छा कर रहे हो आप। अभी अपने पंजों पर ध्यान दीजिए, जैसा मैंने बताया था पंजे स्ट्रेट होने चाहिए, पंजे फोल्ड नहीं होने चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट करते रहिए। आप ये जिसका भी स्क्रीन पर है, आप नी फोल्ड कर रहे हैं, नी फोल्ड नहीं करना है आपको। मैंने कई बार बोला हमें नी स्ट्रेट करके जंप करना है। हाँ बढ़िया था, पर अभी भी आपके घुटने मुड़े हुए हैं, नी स्ट्रेट रखिए। ऐसे ब्रेक कर करके नहीं करना है हमें, अपने जो स्टेप्स हैं आप स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, स्टेप्स और आपको कंटिन्यू रखना है, स्टेप्स कंटिन्यू रखना है, स्टेप्स कंटिन्यू अपने मन में काउंट कीजिए 3 स्टेप और उनको कंटिन्यू चलिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेग को, जब हम कनेक्ट करेंगे सेम। अभी मैं आपको सिर्फ अभी कोई स्टेप नहीं करेगा, स्टेप का लास्ट का जो स्टेप था थर्ड स्टेप, अभी थर्ड स्टेप पर आ जाएगी। थर्ड स्टेप ये था हमारा, अब यहाँ से
जंप करना स्टार्ट करेंगे, सीधे जंप। मतलब अभी हमने सिंगल लेग को ट्रेवल कराया, अभी हम सेकंड लेग को उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह फिर क्या किया, फर्स्ट लेग को हमने जो बेसिक किया था, फर्स्ट लेग को वैसे ही उठाना है और उसके साथ हमें सेकंड लेग को उसके साथ फॉलो करना है, मतलब लेफ्ट लेग को हमें राइट लेग को फॉलो करवाना है, सिंपल है। यहाँ आता है, यहाँ से आप ये ध्यान रखिए, आपका अपर बॉडी ऐसे डाउन नहीं आना चाहिए, हैंड्स लूज नहीं होने चाहिए। अगर हम यहाँ से जंप कर रहे हैं तो अपर बॉडी ऊपर की तरफ और ये साथ में ऊपर की तरफ, ठीक है। अपर बॉडी ऊपर की तरफ और हैंड स्ट्रेट, कोशिश करिए। रेडी, गो। और सिंपल खड़े होना, ट्राई करिए आप। अभी स्टेपिंग नहीं करेंगे हम, अभी सिर्फ खड़े खड़े करना है, स्टेपिंग हम बाद में इसको कनेक्ट करेंगे स्टेपिंग के साथ। अच्छा चल रहा है, पर आप अपने हैंड्स को कंट्रोल करिए, हैंड्स को कंट्रोल करते हुए करना है, हैंड्स और अपर बॉडी को भूलना नहीं। सही कर रहे हैं, पंजे स्ट्रेट रखिए, पंजे स्ट्रेट रखने का ट्राई करिए। सेकंड लेग को भी हमें उतना ही पावर से ऊपर उठाना है जितना पावर से हम फर्स्ट लेग को उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेग हमने ज्यादा ऊपर उठा दिया, सेकंड लेग नीचे ही रहने दिया, दोनों लेग हमको बराबर लेवल पर उठाना है। ट्राई करिए, ट्राई करिए। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया है ये। बस अपने पंजे पंजों पर ध्यान दीजिए, लेग्स के फुट पर ध्यान दीजिए, उन्हें स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपर बॉडी को भूलिए मत, अपर बॉडी और हाथ, अपर बॉडी और हाथ पूरा स्ट्रेट रखिए, पावर से उसको पकड़ के रखिए। सही चल रहा है, अपर बॉडी पर ध्यान रखिए। चलिए अभी हम 2 मिनट का वाटर ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे हम। 2 मिनट का वाटर ब्रेक है, उसके बाद हम फिर मिलते हैं।
ये चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने जो किया उसमें हम स्टेप्स को अब कनेक्ट करेंगे। जो हमने 3 स्टेप्स किए थे बेसिक्स में, उस 3 स्टेप्स को हम फाइनल उसमें कनेक्ट करेंगे और उसके साथ हम जंप का करने का ट्राई करेंगे। मैं आपको बता दूं, आप सभी अपने अपने घर पर हैं, तो जितना स्पेस हो और सेफली तरीके से आपको करना है। आपको अपने आप को इंजरी नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टेप्स के साथ, 3 स्टेप्स के साथ फाइनल जंप करना हमें। रेडी, गो। आराम से करेंगे। 1 2 3, यहां से जंप अप। ओके, फिर से देखिए उस साइड से। गो 1 2 3, जंप। आपने देखा, इसमें अपर बॉडी को हमें डाउन नहीं जाने देना है। आप अपर बॉडी को अगर डाउन जाएंगे तो उसमें आपका माइनस मार्किंग होगा। ओवरऑल में आपका स्कोर नीचे की तरफ आएगा। इसमें जंप का तो स्कोर मिलेगा आपको, पर ओवरऑल में आप कहीं ना कहीं अच्छे प्लेयर से नीचे आ जाओगे आप। अगर आपको ओवरऑल में भी हाई स्कोर चाहिए तो हमें जंप का पोस्चर हवा में अच्छा दिखना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट आपका नी नहीं फोल्ड होना चाहिए। सेकंड, आपके पंजे स्ट्रेट एकदम खिंचा हुआ होना चाहिए। थर्ड, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखना है, उसको ढीला नहीं छोड़ना है। फोर्थ, हैंड्स को हमें फ्लो देने के बाद उसको हवा में सीधा करना है, उसको ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है। फिर से करेंगे। गो 1 2 3 4। अगेन दूसरे साइड से 1 2 3 4 करके दिखाइए आप लोग। स्टेप्स के साथ कनेक्ट करिए। वन टू थ्री, बहुत बढ़िया। पर आपने हाथ को ढीला छोड़ दिया। हाथ और अपर बॉडी को पकड़ के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है। जितनी भी मैंने गलतियां बताई उसको ध्यान रखिए। अपने घुटने नहीं मुड़ने देना है आपको। नी फोल्ड नहीं होना चाहिए, नी स्ट्रेट रखिए। ठीक है, और स्ट्रेट करने का ट्राई करिए। मैं आपको इसके मेजर पॉइंट बताता हूं जहां आपका स्कोर कट सकता है। सबसे पहला तो पॉइंट होता है जब हम जंप करते हैं, उस टाइम हम जो लेग उठा रहे हैं वो हमारे वेस्ट लेवल से नीचे नहीं होने चाहिए। वेस्ट लेवल से पैर नीचे नहीं होने चाहिए। अगर हमारी कमर के लेवल से पैर नीचे होते हैं तो हमारे पॉइंट माइनस होते हैं। सेकंड है, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। अगर हम जो पैर उठा रहे हैं उनका नी, पैर उठाते टाइम हमारा नी अगर ऐसे फोल्ड होगा और ये वेस्ट लेवल से नीचे रहेगा तो हमारा स्कोर कटेगा। ये 2 मेन पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है।
मैं आपको फिर से दिखाता हूं। जब हम कर रहे हैं जंप, स्टार्ट करो, 1 2 3 जंप। आपने देखा जब जंप किया बॉडी अप थी, लेग्स वेस्ट लेवल मतलब कमर के लेवल से लेग्स ऊपर थे, घुटने स्ट्रेट थे और पंजा पूरा खिंचा हुआ था। इसी तरीके से हमें करना है फाइनल जंप। और अभी हमने आपको बेसिक के लिए स्टेपिंग स्लो करके दिखाई है। इसमें हम स्टेपिंग स्पीड में करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका हैबिट बनता जाएगा, तो वो स्टेपिंग आपका स्पीड में आएगा। एक बार करके देखते हैं स्पीड में। 3 स्टेप में जंप करेंगे। रेडी? इस तरीके से हमें फाइनल जंप होता है हमारा। लेकिन अभी आप बिगिनर हैं, स्लोली लर्न करिए, धीरे धीरे स्टेपिंग करिए और धीरे धीरे जंप करिए। मैं देखूंगा आपका, आप करके दिखाइए। जो भी मैंने माइनस मार्किंग बताया है वो ध्यान में रख के करिए, उसे भूलना नहीं है। और स्पीड में करने के चक्कर में गलती मत करिए। आपका नी फोल्ड हो रहा है, जो भी ये कर रहे हैं, आपका नी फोल्ड हो रहा है, नी को स्ट्रेट रखिए। ये जिसका भी वीडियो है सामने, आपने किया अच्छा, पर बॉडी को पूरा डाउन ले जाकर ऊपर की तरफ खींचना है। एक बार फिर से मेरी तरफ क्या करिए। ठीक है, अभी देखिए मेजर गलती क्या हो रही है। सभी लोग जब यहाँ थर्ड स्टेप पर आ रहे हैं, थर्ड स्टेप पर आने के बाद यहीं से जंप कर रहे हैं, यहाँ से नहीं करना है हमने। जब आप यहाँ थर्ड स्टेप में आ गए, उसके बाद पूरा नीचे की तरफ जाइए। हमारा बॉडी एक स्प्रिंग के जैसा है, हमारा नी जो है स्प्रिंग के जैसे काम करेगा। इसमें आप स्प्रिंग को जितना प्रेस करेंगे, आप जब छोड़ेंगे वो उतना ऊंचा की तरफ जंप करता है। सेम हमें यहाँ पर है, इसको पूरा नीचे की तरफ जाइए और फिर हमें उठना है ऊपर। अगर आप इसको ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो ना तो आपका फ्लो आएगा और ना ही आपकी जंप की हाइट आएगी। अगर आप अपना बॉडी पोस्चर सही रखना चाहते हैं तो इसको पूरा नीचे तक जाइए। एक वी शेप बनाना है हमको, वी शेप में जाना है जंप को। करके दिखाइए। सही कर रहे हैं आप, पर अभी मैंने बताया वी शेप में जाना है। वी शेप में जाइए, बॉडी को पूरा नीचे तक ले जाइए, फिर उसको ऊपर उठाइए।
सही जा रहा है? ये जो भी स्क्रीन पर है, आप लेग सही हाइट पर उठा रहे हैं, पर अपना बॉडी, अपर बॉडी को कंट्रोल करना सीखिए। अपर बॉडी को हमें फ्री नहीं छोड़ना है, मैं बार बार कह रहा हूं, अपर बॉडी को कंट्रोल करिए। हाँ, ये सही था। थोड़ा और ट्राई करिए, अगर आप थोड़ा और अच्छे से करेंगे तो बॉडी बहुत अच्छे से हवा में होगी। हाँ, बढ़िया था। चलिए एक बार हम फिर से शुरू से हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। साइड में आ जाओ। शुरू से हम बेसिक रिवाइज करते हैं, ठीक है? बेसिक हमें रिवाइज, आप ध्यान रखिए कि हमें क्या क्या करना है जंप्स को बेटर बनाने के लिए। शुरू से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो हमने पहले किया था। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप स्विंग के टाइम लेग्स अपना जितना हाई ले जाएंगे, पर उसमें बॉडी को नीचे नहीं करना है, बॉडी को सीधा रखते हुए स्विंग हाई लेवल तक करना है। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, लेग चेंज 1 2 3 4। स्विंग के टाइम भी नी स्ट्रेट रखने का ट्राई करिए। अगर हम बेसिक से ही आदत बनाएंगे तो हमें जंप के टाइम पर डिफिकल्टी नहीं होगी। गो 1 2 3 4 5, करते रहिए आप लोग भी, मैं देखूंगा। नेक्स्ट बेसिक क्या था हमारा? दोनों लेग्स को एक साथ अप करना। नेक्स्ट बेसिक करेंगे दोनों लेग को एक साथ। रेडी? 1 2 3 4। ट्राई करना है नी स्ट्रेट, नी ऑलवेज स्ट्रेट। 5 6 7 8। करिए आप लोग, मैं चेक करूंगा। नी स्ट्रेट रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बेसिक से ही अपना आदत सुधारिए। अगर आप बेसिक में गलती करेंगे तो एडवांस में भी गलती होगा। बेसिक से ही सही करिए। नी स्ट्रेट करिए, बहुत सुंदर, ये सही था। 1। आप अपने पंजे भी स्ट्रेच करिए, पंजे पंजे स्ट्रेच करिए। सेकंड लेग का नी फोल्ड हो रहा है आपका। दोनों लेग्स के नी स्ट्रेट रहने चाहिए और कोशिश करिए आपके लेग्स आपके कमर के लेवल से ऊपर रहे हमेशा। ये अच्छा है। चलिए अब हम स्टेपिंग स्टेपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। स्टेपिंग की प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। स्टेपिंग की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टेपिंग से ही हमें अपना रनअप मिलेगा और अपना हाइट मिलेगा। स्टेपिंग का ट्रेन करेंगे। 1 2 3। अगेन दूसरे साइड से 1 2 3। फिर से करेंगे 1 2 3। चलिए आप लोग करिए। अब स्टेपिंग का ट्रेनिंग करिए। स्टेपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है।
अभी जंप नहीं करना है, अभी जंप नहीं करना है, सिर्फ स्टेपिंग करना है। अगर आपने स्टेपिंग सही करा तो आपका आधा जंप वहां कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको सिर्फ बॉडी को हवा में ले जाना है। करते रहिए। चलिए अब हम इसको स्टेपिंग के साथ जंप कनेक्ट करने की ट्रेनिंग करेंगे। सिंपल स्टेपिंग और उसके साथ जंप करना। सिंपल स्टेपिंग 1 2 3 4। दूसरे साइड से 1 2 3 4। आप लोग करिए। स्टेपिंग के साथ जंप को कनेक्ट करना है। 3 4। अच्छा था ये। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि अपने घुटने सीधे रखिए और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींच के रखिए, ढीला नहीं छोड़ना है। सही कर रहे हैं, पर अपने घुटनों पर ध्यान रखिए। नी स्ट्रेट रहने चाहिए हर टाइम, हर टाइम नी स्ट्रेट रहना चाहिए। हाँ, आपका ठीक है, पर सेकंड लेग का नी और सीधा करिए। अच्छा है, सेकंड लेग का नी और सीधा करिए। फर्स्ट लेग का नी तो सही है, सेकंड लेग का नी और सीधा करिए। हाँ आपका। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको स्टेपिंग अपना स्पीड करना है। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे तो आपका स्टेपिंग धीरे धीरे स्पीड हो जाएगा, और स्पीड में जब आ जाएगा तो आपको जंप और आसान लगने लगेगी। आप इजी ईज से जंप कर पाएंगे। करते रहिए, मैं देख रहा हूं। ये बहुत अच्छा था जिसने किया, पर आपका अपर बॉडी आपने एकदम डाउन कर दिया। अपर बॉडी को ऊपर उठा के रखिए, अपर बॉडी को छोड़ना नहीं है। आपने अपर बॉडी छोड़ रहे हैं आप। आपका अपर बॉडी और हैंड का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, उसको क्लियर कट रखिए। चलिए अब हम स्टेपिंग को स्पीड करते हैं, और थोड़ा स्टेपिंग को स्पीड करते हुए हम जंप करेंगे। रेडी, गो। 1 2 3 4। ऐसे आपको भी अपने मन में काउंटिंग स्पीड करनी है। फिर से स्पीड में अपने मन में काउंट करिए। गो 1 2 3 4, जंप। आपने देखा अपर बॉडी एकदम सीधी, हाथ साइड में। ऐसे ढीले नहीं रखना है, ना ही अपर बॉडी को डाउन करना है। हमें अपने घुटना भी स्ट्रेट रखना है, पंजों को खींच के रखना है। ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। फिर से करके देखिए, काउंटिंग स्पीड में करेंगे हम, ठीक है। गो 1 2 3 4।
करके दिखाइए आप लोग, कुछ ही टाइम रह गया है, करके दिखाइए। हाँ ये बढ़िया है, पर इसमें हम और आप अभी स्टेपिंग तोड़ तोड़ कर रहे हैं। स्टेपिंग तोड़ना नहीं है, स्टेपिंग को कंटिन्यू चलने दीजिए, अपने मन में उसको काउंट करिए। अच्छा है, लेग्स और स्ट्रेट करिए। करते रहिए, मैं देख रहा हूं। ये जो भी स्क्रीन पर है, आपके दोनों पैरों के घुटने मुड़े हुए हैं, दोनों पैरों के घुटने मुड़े हुए, उन्हें सीधा करिए, ट्राई करिए, होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे ट्राई करिए। हाँ करते रहिए, मैं देख रहा हूं आपको। देखिए जो भी मैंने बेसिक्स बताए हैं आपको, उनको ध्यान रखिए, बेसिक्स हमेशा ध्यान रखिए, बेसिक को फॉलो करते हुए हमें जंप करना है। ये बहुत अच्छा जंप था जिसने किया, एकदम परफेक्ट किया आपने। ये भी बढ़िया था, पर आप अपना नी स्ट्रेट करिए, सेकंड लेग का नी स्ट्रेट करिए। ये अच्छा था। लास्ट में लैंडिंग के टाइम आप अपना बॉडी फ्री छोड़ रहे हैं, लैंडिंग के टाइम अपना बॉडी फ्री मत छोड़िए, बॉडी को पूरा लैंड करने तक हमें अपना अपर बॉडी को पकड़ के रखना है। हाँ ये बढ़िया था, नाइस। अभी आप स्टेपिंग को और थोड़ा स्पीड कर सकते हैं। आपका अगर स्लो स्लो स्टेपिंग में आपका जंप अच्छा आ रहा है, तो आप स्टेपिंग को थोड़ा स्पीड करने का ट्राई करिए। ये बहुत अच्छा था। आप अपर बॉडी के चक्कर में लेग्स को मत भूलिए। अपर बॉडी तो उठाना ही है, लेकिन हमें अपने लेग भी कमर के लेवल से ऊपर रहना चाहिए, कमर के लेवल से नीचे नहीं। चलिए एक बार मेरी तरफ करिए कैमरा। लास्ट का कुछ मिनट रह गया है, मैं आपको इसके मेजर पॉइंट बता देता हूं, जो कि मैंने बताया आपको। बेसिक से लेकर एडवांस तक हमें बेसिक को फॉलो करते हुए एडवांस तक जाना है, एक भी चीज को तोड़ना नहीं है। प्लस इसके लिए आपका बैक का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। जब आपका बैक का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होगा, तभी आपका अपर बॉडी भी और लोअर बॉडी भी दोनों एक साथ हवा में होंगे। ठीक है। सेकंड, नी हमेशा स्ट्रेट रखना है, ऑलवेज आपको ट्राई करना है, चाहे आप स्विंग करें, बेसिक करें, कुछ भी करें, नी स्ट्रेट रखते हुए ही करना है हमको। ओके। और थर्ड, हमें याद रखना है कि लेग्स जो है हमें कमर के लेवल से ऊपर उठाने हैं, कमर के लेवल से कोई भी लेग नीचे की तरफ नहीं रहेगा। कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि पहला लेग ऊपर, सेकंड लेग नीचे, ऐसे नहीं, दोनों लेग एक ही लेवल पर जाना चाहिए। जो इसके मेजर पॉइंट्स होते हैं, जहां हमारे पॉइंट माइनस होते हैं, वो है यही, कमर से नीचे पैर होना, और दूसरा घुटने का मुड़ना। आपका नी स्ट्रेट रहेगा, लेग्स कमर के लेवल से ऊपर रहेंगे, और बॉडी पोस्चर हवा में एकदम सीधा रहेगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा इसमें।
ठीक है, बाकी आप लोग करते रहिए, मैं देख रहा हूँ। ये अच्छा है आपका, पर लैंडिंग के टाइम आप नी फोल्ड कर देते हैं। लैंडिंग के टाइम तक नी सीधा रखिए। सही जा रहा है आपका, पर नी और स्ट्रेट रखिए आप। मैंने आपको कहा अपर बॉडी को नीचे ले जाकर ऊपर की तरफ ले जाना है। हमें अपर बॉडी को नीचे की तरफ ले जाकर ऊपर जाना है। कई लोग ऐसे ऊपर से ही जा रहे हैं, ऊपर से नहीं। ओके, पूरा नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ लेके जाओ, फिर ऊपर उठो। अगर आप ऊपर ऊपर से जाओगे तो आपका बॉडी आगे की तरफ निकल जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए। बॉडी बॉडी को हमें नीचे ले जाना है और यहाँ पीछे की तरफ, हल्का सा पीछे की तरफ डायरेक्शन में हमें उसको ट्रेवल कराना है। करते रहिए, और मैं जो भी गलतियां बता रहा हूँ उसको प्लीज ध्यान में रखते हुए करिए। बढ़िया चल रहा है। अपर बॉडी का और ध्यान रखिए। नी स्ट्रेट रखिए, नी फोल्ड नहीं होना चाहिए। अपने घुटनों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, नी स्ट्रेट रहने चाहिए। बहुत अच्छा था ये। पैर और ऊपर उठा बेटा। आराम से करिए, इंजरी नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो जैसा मैंने बताया था, थर्ड स्टेप जो लास्ट स्टेप है हमारा, सिंगल स्टेप में भी हम कर सकते हैं जंप। बेसिक के लिए आप उसको ट्राई कर सकते हैं, और स्टेपिंग ध्यान में रखिए। ये अपर अपर बॉडी नीचे नहीं गिराना है, अपर बॉडी का ध्यान रखिए।
चल गया क्या? ये ये साला मनु इस पर से बोल रहा था, बोल देख कितना अच्छा फोन है, बिल्कुल भी टूटा नहीं हुआ कहीं से। Thank you, Anjul. That was a wonderful session. बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत अच्छा तरीके से बहुत जान लगा के सिखाया और हमारे देश भर के खिलाड़ी सभी ने भी बहुत अच्छा से भाग लिया। और आज स्वान जी जो सिंपल बटरफ्लाई है बढ़िया से सीख लिया है। थैंक यू अंजुल एंड थैंक यू बच्चों, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं आप सभी ने अच्छा खेला, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है भारतीय वुशु संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से। अभी सेशन का अंत में हर वीक का अंत में जिस तरह अनाउंस करता है हमारा डायरेक्टर सर, 3 ऐसे बच्चे के अनाउंस करेंगे जिन्होंने दिल लगा के मेहनत किया है हफ्ते भर में, बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ द वीक। और साथ साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा साइनी आरसी इम्फाल के डायरेक्टर सर फ्रांसिस मार्विन जी को, ताकि वो आए और 3 हमारा बेहतरीन जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक है, जो 3 खिलाड़ी चुना जाता है हर हफ्ते, तो उसी का नाम अनाउंस करें। और साथ साथ में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भारतीय वुशु संघ के हमारा नेशनल चीफ कोच और रेस्पेक्टेड सर श्री कुलदीप हंदू जी को, ताकि सर के साथ जो रिगार्डिंग द फीडबैक्स ऑफ द सेशन डिस्कस करें और आने वाला हफ्ते के लिए भी चर्चा करें। तो मैं हमारा रेस्पेक्टेड चीफ कोच कुलदीप हंदू जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। वेलकम सर, वेलकम सर। Francis Marwinji, Director SciNERC Imphal, will announce the best performers of the week. Welcome, sir. Good afternoon, everyone. सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अंजुल नामदेव सेशन को कंप्लीट किया। थैंक यू अंजुल नामदेव। तो हर वीक की तरह आज भी मैं 3 नाम अनाउंस कर रहा हूँ, जिसको हमारे जो कोचेस की कमेटी है उसने चूज किया, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनका नाम है नंबर 1 है मनु कुमार, धनबाद से झारखंड, मनु कुमार है। नंबर 2
प्रियंका मित्तल उड़ीसा, प्रियंका मित्तल उड़ीसा से है। और नंबर 3 में गीता याजी, साई NCOE ईटानगर से, ईटानगर गीता याजी, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और सभी तीनों को मैं बधाई देता हूं। उनको अभी लॉकडाउन के वजह से हम लोग अपना जल्दी आपको जो गिफ्ट देने वाला है वो जल्दी भेज नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपके जो गिफ्ट है आपके घर में पहुंच जाए। और कुलदीप है क्या? कुलदीप ऑनलाइन आ जाइए अगर है तो। हाँ कुलदीप, वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सर आप ठीक है बोलिए सर? क्या रहा? हाँ ठीक है, चल रहा है। सर ये बहुत अच्छा अंजुल नामदेव जो एक रिनाउंड इंटरनेशनल प्लेयर है तावलू के और वन ऑफ द बेस्ट अच्छा। प्लेयर है तावलू के इंडिया के सर। आज हाँ। उन्होंने वो अपने तावलू के बारे में एक्सपर्टाइज बता दी, शेयर की बच्चों के साथ। होप के बच्चों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि हाँ। बहुत अच्छा मौका है सर कि हम अपने जो अभी जो इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो अभी इसमें ई पाठशाला में आ रहे हैं और अपने एक्सपर्टाइज बता रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी बड़ा फायदा है, जो ग्रूमिंग का बच्चे हैं, जो बडिंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि वो इसको ग्रैब करें। तो थैंक यू वेरी मच अंजुल फॉर द वंडरफुल सेशन सर। होप कि दैट इन फ्यूचर आपको फिर हम तकलीफ दे देंगे और आप आ जाएंगे और बच्चों के साथ शेयर करेंगे। सेकेंडली सर, आपने 3 बच्चों को जिनने अवार्ड दिया, तो जिनको अवार्ड आपने सर नाम बुलाया सर, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फेडरेशन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ सर। थर्डली मैंने सर लास्ट वीक में मैंने बताया था सर कि मैं फेडरेशन से बात करूंगा रिगार्डिंग जितने भी पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स हैं, जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं सर, उनको सर वो सर्टिफिकेट देने की फेडरेशन की तरफ से वो सर्टिफिकेट मिल जाएगी सर। तो मैंने फेडरेशन से ऑलरेडी बात की और फेडरेशन ने एग्री कर दिया सर। तो मैं प्रेम से बताता हूँ सर कि वो अपना वो लिस्ट बनाते हैं, जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हम लास्ट में वो सर्टिफिकेट से मिल जाएगी, और जिनका ये नाम आप अनाउंस करें तो उनका वो मेरिट सर्टिफिकेट्स मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है सर कि चलो फेडरेशन भी अच्छा इसमें आगे आ रही है सर, और फेडरेशन भी ट्राई करेगी सर आगे कुछ जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं उनको सर कुछ अलग सा इनाम देने के लिए सर वो बात करेंगे सर। हमारी भी मीटिंग हो रही है सर, उसमें भी फाइनल हो जाएगा कि क्या वो अवार्ड किस स्टेप में, मेडल होगा, टी-शर्ट्स होगा, जो भी होगा सर वो भी सर्टिफिकेट्स के साथ वो भी दिया जाएगा सर। अच्छा, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। ये खुशी की बात है, वुशु फेडरेशन की तरफ से बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। और लास्ट वीक हम लोग डिस्कस किया था जो 8 तारीख को जो वर्ल्ड कुंग फू डे को 30th एनिवर्सरी सर। डे है, तो उसके लिए आप तरफ से उस दिन 8 तारीख को। जी सर, वो 8 तारीख को है सर। मैंने ना सर ये जो बैनर का जो मटेरियल है वो मैंने ड्राफ्ट करके प्रेम को भेज दिया सर। वो उसको थोड़ा शेप दे देगा सर, मैं वो अप्रूव करा के वो फाइनल कर लेंगे सर। बाकी वो सर जो इसके जो क्या क्या प्रोग्राम होगा, अच्छा, वो अभी सर कल हमारे मतलब 2-4 दिन से वो लगातार मीटिंग हो रही है सर। शॉर्टली सर विद इन मंडे को मैं आपको सर फाइनल बता दूंगा सर उस दिन प्रोग्राम क्या क्या रहेगा सर, सो दैट कि आप भी उसमें सर वो हमारा मतलब आपका फंक्शन है सर, मतलब आप ही का फंक्शन है, आप नहीं करना है, तो वो कैसे प्रोग्राम रहेगा। तो हाँ, करना तो हमारा तरफ है, लेकिन वुशु जो आप तो वुशु का अपेक्स बॉडी है, आपका वुशु का सबसे अपेक्स बॉडी है, तो आपको आपके बिना तो हम कर नहीं सकते। तो आपका थोड़ा हम तो तैयारी है सर। उसमें वो चार्ट आउट करके ना सर प्रोग्राम क्या क्या रहेगा और उस दिन क्या क्या सीक्वेंस रहेगी सर। तो वो मैं सर आपको मंडे को सर मैं टेलीफोनिकली आपसे बात करूंगा और आपसे अप्रूवल भी ले लूंगा। अगर आपने कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आप बता देंगे सर, वो कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो डीजी है उनको भी आपके तरफ से इनवाइट करें तो अच्छा रहेगा। जी सर, हाँ, वो फेडरेशन की तरफ से जाएगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डीजी साहब या फिर जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री, तीनों में से जो भी एग्री करेंगे सर वो आ जाएंगे सर। हाँ, वो अच्छा रहेगा। बाकी हमने इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एंथोनी गो को बता दिया सर, रिक्वेस्ट की है, होपफुली कि विद इन कपल ऑफ डेज में उनका भी यस और नो आ जाएगा सर। तो थैंक यू। तो फिर सोमवार को मिलते हैं।
राइट सर, मैं प्रोग्राम भी सर जो मंडे से रहेगा वो प्रेम से भी डिस्कस करके आपको मैं शाम से ही शाम को बात करूंगा सर आपसे। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। ओके।